بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور عزیزان گرامی، آج ہم اس عظیم سانحہ کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخ انسانیت میں حق اور باطل کی ایسی واضح تقسیم بن گیا کہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ یہ قصہ صرف آنسو بہانے کا نہیں، یہ داستان صرف مظلومیت کی نہیں، بلکہ یہ صبر، شجاعت اور حق پر ڈٹے رہنے کی ایک لازوال مثال ہے۔ یہ واقعہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ عمومی طور پر لوگ اس واقعے کو یوں پیش کرتے ہیں کہ گویا امام عالی مقام پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے اور کسی طرح کربلا سے نکلنا چاہتے تھے۔ معصومیت کی ایسی تصویر کھینچی جاتی ہے کہ ہمارے بچے اسے محض ایک دردناک کہانی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ روایت سراسر غلط ہے۔ اس عرض پر اس کائنات میں جس ہستی سے شجاعت، استقامت اور حوصلہ سیکھا گیا وہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کربلا، رونا دھونا، انہیں کربلا نہیں کہتے، کربلا حوصلہ اور دلیری کا نام ہے۔ بیعت سے انکار، حق کا پرچم۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب مسلمانوں کے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید مسند اقتدار پر آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بلایا اور فرمایا تھا کہ اپنا معاملہ 3 بزرگ ہستیوں کے سامنے پیش کرنا، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو امیر بن جانا، ورنہ چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ لیکن یزید نے تیزی دکھائی۔ اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ فوری طور پر حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلا کر بیعت لے۔ رات کے وقت انہیں طلب کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا۔ اگر پوری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں، لیکن یزید کی بیعت میں عام آدمی کی طرح نہیں کروں گا۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وہ بیعت نہیں کریں گے۔ جو شخص اللہ کی حدود کو توڑتا ہے وہ شرابی ہے، جو کھلے عام گناہ کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ میں اپنے بچے کٹوا دوں گا مگر شرابی کو ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ سودا ضمیر کا ہے اور ضمیر کا سودا عام ہو گیا ہے۔ یہ امام حسین نے سکھایا۔ مدینہ سے کربلا حق کی جانب سفر۔ ولید بن عقبہ نرم دل تھا، لیکن عبد المالک بن مروان نے اسے اکسایا کہ اگر حسین آج ہاتھ سے نکل گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور فرمایا کہ اگر تجھ میں ہمت ہے تو سامنے آ، چھپ کر باتیں نہ کر، میدان میں آ۔ یہ کہہ کر آپ مدینہ سے باہر نکلے۔ آپ نے مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا میں وہ بکھراؤ نہیں چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں خون بہے۔ مدینہ سے آپ مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو کوفے سے خطوط آنے لگے۔ کوفے جیسے دارالنشاط یعنی سرگرمیوں کا گھر کہا جاتا تھا،
वहाँ आपके चाहने वालों ने हज़ारों खतूत लिखे कि हजूर आप खामोश क्यों बैठे हैं, यजीद का जुल्म हम पर मुसल्लत हो गया है। ये खतूत 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 3 बोरियों में भरे हुए थे। मुस्लिम बिन अकील की शहादत वफा की आखिरी मिसाल। इन खतूत के जवाब में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने चचा के बेटे हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे, जो बहुत समझदार और मामला फ़हम थे, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफे भेजा। जब वो कूफे पहुँचे तो लोगों ने तेज़ी से इनकी बैत की। एक ही दिन में 17,000 लोगों ने बैत की और चंद दिनों में ये तादाद 40,000 तक पहुँच गई। लेकिन यजीद ने फ़ौरन उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बनाकर भेजा। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद एक ज़ालिम और सरकश शख्स था। इसने पहुंचते ही नुमान बिन बशीर को हटाया और गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा कर लिया। इसने कूफे के सरदारों को धमकियां दी और ब्लैकमेल किया। इसके जुल्म की वजह से रातों रात लोग मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ गए। जिस दिन 40,000 का लश्कर था, अगले ही दिन सुबह जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कूफे की जामा मस्जिद में नमाज के लिए गए तो 75,000 आदमी इनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। लेकिन जब मगरिब का वक्त आया और उन्होंने नमाज की नीयत बांधी तो सिर्फ 10, 11, 15 लोग रह गए थे और बाकी सब गायब हो चुके थे। और जब मुस्लिम बिन अकील ने सलाम फेरा तो पीछे एक बंदा भी नहीं था। अल्लाह अकबर। आपको गिरफ़्तार किया गया और कूफे के ऊंचे मीनार से गिराकर शहीद कर दिया गया। शहादत से एक रात कबल आपने इमाम हुसैन को ख़त लिखा था कि आप आ जाएं, हालात बहुत अच्छे हैं। करबला में घिराव, पानी पर भी पाबंदी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मक्का से कूफे की जानिब चल पड़े। रास्ते में आपको फरज़ोक नामी शख्स मिला जिसने आपको कूफे वालों की बेवफाई से आगाह किया। इसने बताया कि कूफे वाले ज़बान से आपके साथ हैं मगर तलवार आपके साथ नहीं है। इसने बताया कि कूफे वाले ज़बान से आपके साथ हैं मगर तलवारें आपके साथ नहीं हैं। इसने मुस्लिम बिन अकील की लाश को चौक में लटका हुआ देखा था। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरा भाई लटका हुआ था, कहीं किसी के आगे झुका तो नहीं था। आपने मज़ीद फरमाया, मुस्लिम बिन अकील लटक गया तो हुसैन भी लटक जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। यजीद ने हरबन यजीद को एक मुख्तसर लश्कर देकर भेजा। हरबन यजीद ने इमाम हुसैन के रास्ते में कई मकामात पर रोका और बिला आखिर करबला के मैदान में रोक लिया। इमाम हुसैन ने पूछा, ये कौन सी जगह है? जवाब मिला, करबला। आपने फरमाया, बस यही हमें लगा दो। तारीख़ दान शुबिया बिन यासिर से पूछा गया कि आप क्यों नहीं रुके? उन्होंने फरमाया, मैं रुक जाता लेकिन मैंने रात को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हजूर ने फरमाया, हुसैन, अगर आज ये रिवाज पड़ गया कि लोग ज़ालिमों के सामने गर्दन झुका देंगे तो ये क़यामत तक पड़ा रहेगा। करबला की जंग इस्लाम पर गई। मुहर्रम को इमाम हुसैन के काफ़िले पर पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को पानी पीने की इजाज़त न थी। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पानी पीते थे, कुत्ते पानी पीते थे,
मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। 9 मुहर्रम की शब यजीद के लश्कर ने जंग के लिए दबाव डाला। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया और बहर आकर वही बात फरमाई जो पहले दिन फरमाई थी, मैं बैत नहीं करूँगा, मैं बैत नहीं करूँगा। शब अशूर इबादत और कुर्बानी का अहद। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़ालिम लश्कर से एक रात की मोहलत मांगी। आपने फरमाया, मुझे मालूम है कि जंग का नतीजा क्या निकलता है, मुझे एक दिन दे दो ताकि मैं अपने रब की खुलकर इबादत कर लूँ। आप सारी रात इबादत में गुजारते रहे, फजर की नमाज अदा की और 10 मुहर्रम का दिन तलू हो चुका था। 10 मुहर्रम को जंग का आगाज़ हुआ। इमाम हुसैन के साथ इनके 4 भाई थे। हज़रत अली के बेटे हज़रत अब्बास, अबू बकर, उमर और उस्मान, ये सब करबला में शहीद हुए। इनकी सगी बहन हज़रत ज़ैनब के 2 साहबजादे मोहम्मद और औन भी शहीद हुए। हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हज़रत कासिम बिन हुसैन हसन एक 16 साला जवान मैदान में निकले। प्यास और ज़ख्मों की तकलीफ़ के बावजूद पहली बार मैदान में जाकर 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। बाद में वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन के सबसे बड़े साहबजादे हज़रत अली अकबर मैदान में निकले। जिन लोगों ने कभी नबी पाक का दीदार नहीं किया था, इन्हें बताया जाता था कि हज़रत अली अकबर का दीदार करो, क्योंकि आप बैना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने भी बड़े बहादुराना अंदाज में जंग लड़ी और शहीद हो गए। हज़रत अली असगर को तो आपने उठाया था, जब आपकी गर्दन पर तीर लगा तो 6 माह का बच्चा वो भी शहीद हो गया। इमाम हुसैन ने खून उछालकर आसमान की तरफ देखा और फरमाया, मालिक देख ले, मैंने 6 माह वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। हज़रत अब्बास पानी लेने गए, इनके दोनों बाजू कट गए। पानी तो भर लिया था मगर हरम तक ना ला सके और गर्दन पर तीर लगा तो शहीद हो गए। इमाम हुसैन की शहादत और करबला का लाजवाल पैगाम। आखिर में इमाम आली मकाम ने खुद तलवार पकड़ी, सर पर दस्तार बांधी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा बांधा और मैदान में तशरीफ़ लाए। जिस तरफ जाते नारा लगाते और इतने लोगों को काटते। रावी कहते हैं कि वो मंज़र पहले भी बड़े हसीन थे, मगर इस दिन जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि जब नमाज का वक्त हुआ तो आपने घोड़े से उतरकर, खून बह रहा था, सर सज्दे में रखा। जब शिमिर आपका सर काटने लगा तो इमाम हुसैन ने फरमाया, मालिक तो अब बता के हुसैन तुझसे राज़ी है या नाराज़। तो एक आवाज़ आई, ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौटा, इस हाल में कि तू इससे राज़ी हो और वो तुझसे राज़ी हो। ये तर्जमा है आयत का। इसी मकाम पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हो गए। इनका सर काट कर नेज़े पर रखा गया और जिस्म करबला में पड़ा रहा। ख़वातीन को घोड़ों पर बैठाकर यजीद के दरबार में लाया गया। यजीद ने गुस्ताखी की और कहा कि देखो, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी और मेरे मुखालफों का क्या हाल हुआ। तो जनाब सैयदा ज़ैनब
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोल पड़ी, आपने फरमाया बात वही है, वह तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा। जिसे चाहे अल्लाह इज़्ज़त दे और जिसे चाहे अल्लाह ज़िल्लत दे। ये तेरी हुकूमत 4 दिन गुज़रने दे, कुछ नहीं रहेगा और मेरे भाई का क़यामत तक मिंबरों पर ज़िक्र होगा। यजीद ने 3 साल हुकूमत की। इसके दौर में शराब आम हो गई। इसने मक्का पर हमला किया और काबा को आग लगाई। मदीना पर हमला किया और 3 दिन मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, लेकिन उम्मत ने इसे कबूल ना किया। वो आज तक मलऊन है, जबकि इमाम हुसैन का नाम कल भी ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा है। करबला का पैगाम ये है कि हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करो। जब जालिम और फासिक हुक्मरान आ जाए तो इसके मुकाबले पर खड़े हो जाओ, और जो हक़ बात बोले वो हुसैनी है। जो जुल्म करे, जुल्म के सामने खड़े हो जाओ, वो हुसैनी है। हालात कैसे भी हों, हकीकत कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मौका ना हो, तब भी हक़ का इल्म बुलंद रखना ही इमाम हुसैन के पैगाम को समझना है। हज़रात, ये दुनिया चंद रोज़ की है। ये ख्वाब लगेगा जब हम यहाँ से जाएंगे। अपना किरदार दीन में अदा करें। इमाम हुसैन ने सारा घराना दीन के लिए दे दिया। हमें अपने दीन से जुड़ना है, दीनदार बनना है और रसूल की ग़ुलामी को इख्तियार करना है, और हसन और हुसैन की हमने पैरवी करना है। उनके नक्शे कदम पर चलना है, उनकी ज़िंदगी को हमने अपनाना है। हमने किसी ज़ालिम के आगे सर नहीं झुकाना। हमने हमेशा सच का साथ देना है। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अगर इसमें हमसे कोई गलती कोताही हो गई है तो कमेंट्स करके हमारी इस्लाह कर दें, और अल्लाह पाक हमें भी माफ़ फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।